हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द थ्रेसिस कैविटी. These are the organs of respiratory system which are present in the thoracic cavity. In the front side of our body there is thoracic cavity, and under this there is abdominal cavity, and at the base of the thoracic cavity there is dome shaped structure that is called diaphragm. So before doing this procedure we have to know what is respiration. What is respiration? Respiration means exchange of gases between body cell and external environment. रेस्पिरेशन क्या है कि कितना गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है हमारी बॉडी सेल्स में और हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में. कैसे हम इंस्पिरेट करते हैं एक्सटर्नल एयर और कैसे हम बॉडी की जो वेस्ट एयर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है कैसे हम उसे एक्सपीरेट करते हैं फ्रॉम आवर बॉडी. So this is respiration, and respiration is possible with two processes. First is breathing and second one is exchange of gases. So now the question is, what is breathing? Breathing means movement of air in and out of lungs. कि एयर की मूवमेंट कितनी हमारे नोज़ के थ्रू, हमारे ट्रेकिया के थ्रू कितने हमारे लंग्स में एयर एंटर कर रही है और कितनी एक्सपीरेशन के थ्रू कितनी एयर हमारी लंग्स से बाहर जा रही है. दैट इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग. मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ लंग्स, दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग. एंड व्हाट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेज? Exchange of gases takes place in the thoracic cavity and also in the body cell tissue. So this is again divided into external respiration and internal respiration. Exchange of gases takes place in the external respiration and also in the internal respiration. What is external respiration? The respiration which occurs in the thoracic cavity, that is called external respiration, means exchange of gases between the respiratory organs and between the blood capillaries, that is called, which occurs in the thoracic cavity, that is called external respiration. And what is internal respiration? After purification the blood goes to the body cells, means ऑक्सीजन यहाँ से लेकर ब्लड हमारी बॉडी में सप्लाई होता है और बॉडी सेल्स में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है टिश्यू के बीच में और ब्लड कैपिलरीज में, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन. तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज डिवाइड इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन. दिस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन लंग्स and external respiration takes place in body cells. So clear about this? So this is general introduction about the respiratory system. Respiration means exchange of gases between body cells and environment, and it is possible by two processes. These are two processes: breathing and exchange of gases. ब्रीदिंग मीन्स कितना हम वेंटिलेटरी इन्वायरमेंट में है, कितने हमारे लंग्स में एयर इन एंड आउट हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग. एंड सेकंड प्रोसेस इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कितने हमारे लंग्स हेल्दी है, कितने उनमें डिफ्यूज़न के प्रोसेस से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है. तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है टू जगह पे, एक तो हमारी थ्रेसिस कैविटी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और एक बाद में ब्लड यहाँ से प्यूरिफाई होकर हमारे सभी ऑर्गन्स के सेल टिश्यू तक जाता है, वहाँ पे होता है डिफ्यूज़न के प्रोसेस से एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन. सो दिस इज जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द रेस्पिरेशन. आफ्टर दैट वी हैव टू नो अबाउट द bronchial tree and all organs of the respiratory system. As we know, in our thoracic cavity there is presence of lungs, and inside the lungs, this is the two lungs, and inside the lungs there is division of our bronchial tree. This is trachea, this is
primary bronchus, then segmental bronchus, then these fine branches are called bronchioles, and last one, these round structures are called alveoli, which are the functional portion of our respiratory system. This alveoli is called smallest unit, or we can say functional portion of our respiratory system. यहाँ से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है स्टार्ट हो गया. ट्रेकिया मीन्स रेस्पिरेटरी पाइप, आगे चल के लंग्स में एंटर कर गई वो, और 2 डिवीज़न बना ली उन्होंने लेफ्ट एंड राइट साइड, जिसे बोलते हैं हम प्राइमरी ब्रोंकस. आगे चल के फिर उन्होंने ब्रांचेस बना ली, दैट आर कॉल्ड segmental branches, then bronchioles, and finally the alveoli. So this is the bronchial tree which is present inside the lungs. कि lungs के बीच में जो delicate structure होती है उसके बीच में हमारा respiratory tree जो है कैसे डिवाइड एंड रीडिवाइड होके फाइनली जो है राउंड स्ट्रक्चर बना लेता है गोल गोल, और उसे बोलते हैं एल्वोलाई, जिनकी मेम्ब्रेन बहुत थिन होती है और इनके अराउंड जो ब्लड वेसल्स होती हैं, हमने पहले पढ़ा था कि जो है हमारा हार्ट वो मीडियास्टाइन जो स्पेस होती है दैट इज़ कॉल्ड मीडियास्टाइनम. दिस स्पेस इज़ फॉर द लोकेशन ऑफ हार्ट. तो हार्ट से हमारा ब्लड जो है प्यूरिफाई होने के लिए लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू हमारे लंग्स में एंटर करता है. तो वो भी आगे चल के ब्रांचेस बनाएगा, और जब तक वो फाइन ब्रांचेस या कैपिलरी जिसे हम बोलेंगे वो हमारे एल्वोलाई के अराउंड पहुंचेंगी, फाइन कैपिलरीज, फिर उनमें क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, और तभी जो कैपिलरीज वो हैं ऑक्सीजन यहाँ से लेके दोबारा ब्लड कैरी करके पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगी. तो ऐसे ब्लड जो है कैसे प्यूरिफाई होके दोबारा हमारे हार्ट में चला जाता है और कैसे फिर सारी बॉडी को सप्लाई होता है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन. सो दिस इज़ अबाउट द structure and different organs which are involved in the respiration that form the respiratory tree. So next, what are the muscles? What are the muscles involved in the respiration? तो इसके ऊपर हम अगर हम सपोज करें या ड्रॉ करें रेस्पिरेटरी ट्री के ऊपर, लंग्स के ऊपर हमारा बोनी पोर्शन कौन सा है, हमारा स्टर्नम, एंड उसके अराउंड जो होती हैं बोनी पोर्शन रिब्स. थोरेसिस कैविटी इनसाइड द रिब केस, हमारी जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द रिब केस. रिब केस में क्या होता है, हम साइड पे डायग्राम उसकी ड्रॉ कर लेते हैं. रिब केस में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा सेंटर में स्टर्नम जो यहाँ पे होगा, और इसके अराउंड क्या प्रेजेंट होगी, हमारी रिब्स जो फ्रंट साइड से स्टर्नम के साथ जुड़ी होती है और पीछे से हमारे वर्टेब्रल कॉलमन के साथ जुड़ी होती है. सो देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स विच आर अटैच्ड टू द attached at the front side with the sternum and at the back side with the vertebral column. And inside this rib case, inside this bony portion, there is presence of lungs, and inside the lungs there is presence of this bronchial tree, respiratory tree. So what are the muscles which help in respiration? कौन से मसल जो हैं वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, कौन से मसल जो हैं जिनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारे लंग्स जो हैं एक्सपैंड करते हैं और रिलैक्स करते हैं. तो मसल्स ये है हमारी रिब्स, और रिब्स के बीच में प्रेजेंट है हमारे इंटरकॉस्टल मसल्स. इंटरकॉस्टल मसल्स ये है हमारा बोनी पोर्शन रिब्स, और रिब्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं मसल्स, एंड दैट मसल्स आर कॉल्ड इंटरकॉस्टल मसल्स. ये इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन में मसल्स. और सेकंड इज जो नीचे हमारी थोरेसिस कैविटी के नीचे है हमारा डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड डायफ्राम.
डायफ्राम के मसल्स हो गए। So these two muscles which help in the respiration, intercostal muscles and diaphragmatic muscles. This is the dome shaped structure that is called diaphragm. इसके muscles और इसके अराउंड जो बोनी पोर्शन है जिसे हम रिब्स भी बोलते हैं और कॉस्टल्स भी बोलते हैं, और रिब्स के बीच में 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं और रिब्स के बीच में स्पेस कितनी होगी फिर 11. So there are 11 pairs of intercostal muscles which help in the expansion and relaxation of the lungs, and by this expansion and relaxation respiration is possible. So there are two types of muscles which play important role during the respiration, intercostal muscles and diaphragmatic muscles. So first of all we will discuss about the intercostal muscles. कॉस्टल वर्ड मीन्स रिब्स, इंटरकॉस्टल मतलब रिब्स के बीच में जो मसल्स हैं दैट आर कॉल्ड इंटरकॉस्टल मसल्स. इन अवर थ्रेसिस कैविटी देर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स एंड इन बिटवीन देर इज 11 स्पेस विल बी देयर एंड देर इज 11 पेयर ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स विच हेल्प इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस विच पार्टिसिपेट इम्पॉर्टेंट रोल इन द फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन. तो इंटरकॉस्टल मसल्स जो रिब्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं दे आर एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स. जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या करेंगे, दे विल पुल द थ्रेसिस कैविटी व्हेन दीज मसल्स विच आर प्रेजेंट एट द अबव लेवल ऑफ लंग्स, व्हेन दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट they will when these muscles contract they will pull the thoracic cavity, they will pull the lungs forward and upward. क्योंकि हमारी बॉडी की शेप कैसी होती है अगर हम देखें तो ये होगी हमारी नेक, और लेटरल व्यू अगर हम देखें हमारी बॉडी का तो नेक के बाद ये होगी थ्रेसिस रीजन और ये हो गया हमारा एब्डोमिनल रीजन. तो हमारी जो थ्रेसिस रीजन होता है दैट इज स्लाइटली फॉरवर्ड. जैसे एक हम बकेट ड्रॉ करें, बकेट की शेप जैसे होती है ना कि ऊपर से स्लाइटली थोड़ी फॉरवर्ड, ऊपर से डायमीटर थोड़ा बड़ा होता है बकेट का और नीचे से डायमीटर बकेट का थोड़ा सा कम होता है. तो अगर एक बकेट का हैंडल जो है, अगर एक बकेट का हैंडल जो है वो मूव करेगा अपवर्ड, बकेट का हैंडल अगर अपवर्ड मूव कॉन्ट्रैक्ट कर, जैसे हमारे ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बकेट के हैंडल की तरह इनकी मूवमेंट होगी, थोड़ी सी फॉरवर्ड भी. मतलब पहले ये हैंडल यहाँ था, अभी ये हैंडल हमने ऊपर उठाया तो थोड़ा सा इसका डायमीटर ऊपर की तरफ भी बढ़ गया और ऐसे डायमीटर इसका ऊपर की तरफ भी बढ़ गया और फॉरवर्ड आगे की तरफ भी बढ़ गया. तो ऐसे ही जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि बकेट जैसी ये वाली अलाइनमेंट जो होती है हमारी बॉडी की भी, थ्रेसिस कैविटी थोड़ी सी आगे की तरफ होती है और अब्डोमेन हमारा थोड़ा सा पीछे की तरफ होता है. तो ऐसे ही जब यहाँ पे हमारे जो रिब्स के इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या करेंगे, हमारी चेस्ट को फॉरवर्ड भी मूव करेंगे और अपवर्ड भी मूव करेंगे. आप प्रैक्टिस कर सकते हो इंस्पिरेट करके कि कैसे आप सांस जब लेते हो अंदर की तरफ तो आपकी चेस्ट जो है थोड़ी सी फॉरवर्ड भी मूव करती है और आपके मसल्स जो हैं अपवर्ड भी मूव करते हैं. दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स कंट्रैक्शन. जब ये मसल कंट्रैक्ट होंगे तो बकेट के हैंडल की तरह ये क्या करेंगे, इनकी ये वाला फॉरवर्ड जो है डायमीटर भी बढ़ जाएगा और अपवर्ड तो बकेट का हैंडल हम मूव कर ही रहे हैं. सो दिस इज़ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स विच आर टू टाइप्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स. when they relax they move the chest downward and when they contract they move the chest forward and upward. फॉरवर्ड होगी हमारी चेस्ट और अपवर्ड होगी और दोनों की हेल्प से क्या हो गया, हमारे लंग्स के इनसाइड डायमीटर बढ़ गया. देन नेक्स्ट वन इज डायफ्रैग्मेटिक मसल्स. डायफ्रैग्मेटिक मसल्स भी जुड़े होते हैं हमारी रिब्स के साथ. डायफ्राम यहाँ भी नीचे आ गया और डायफ्रैग्मेटिक मसल्स आर अटैच्ड विद द
इंटरकॉस्टल मसल्स। और जब ये डायफ्रैग्मेटिक मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, सपोज कर लो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए डायफ्रैग्मेटिक मसल्स, दे पुल द थ्रेसिस कैविटी डाउनवर्ड, क्योंकि इनकी लोकेशन डायफ्राम की अगर हम नॉर्मली देखें तो इसकी लोकेशन होती है एट द बैक साइड नियर अबाउट द 8th थ्रेसिस वर्टिब्रा। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ये कम्स डाउन एंड रीच एट द प्लेस ऑफ 9th थ्रेसिस वर्टिब्रा। ठीक है, नॉर्मली ये 8th थ्रेसिस वर्टिब्रा के लेवल पे लोकेट करते हैं, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे दे विल स्ट्रेच अप टू द 9th थ्रेसिस वर्टिब्रा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए, इन्होंने पुल कर लिया लंग्स को डाउनवर्ड, और पुल होने की वजह से क्या हो गया, लंग्स का डायमीटर और बढ़ गया। इंटरकॉस्टल मसल्स ने फॉरवर्ड एंड अपवर्ड करके लंग्स का डायमीटर बढ़ा दिया, और डायफ्रैग्मेटिक मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे की तरफ उनको पुल कर लिया लंग्स को, और फिर उनका डायमीटर और बढ़ गया लंग्स का। सो दीज आर द टू मसल्स विच contract and increase the diameter of lungs. तो अकेले मसल्स के ऊपर भी कई बार आपको नोट आ सकता है, what are the muscles which involve in the physiology of respiration, that you have to write about the introduction about respiratory system, then you have to write the name of these two muscles and explain their roles, how it contract and how it increase the size of lungs and increase the space between the lungs. So these are the muscles, and after this the cycle of respiration. Cycle of respiration involve main 3 steps. First is inspiration, then is expiration, then is pause. In the cycle of हमारा जो है respiration का cycle वो है combination of 3 steps: inspiration, expiration and pause. इंस्पिरेशन मतलब एयर का हमारे लंग्स के बीच एंटर करना, दैट इज इंस्पिरेशन. एक्सपीरेशन मीन्स एयर का लंग्स से आउट होना, दैट इज कॉल्ड एक्सपीरेशन. देन पॉज मीन्स नेक्स्ट साइकिल, नेक्स्ट रेस्पिरेशन बिगिन होने से पहले हल्का सा पॉज होना, हल्का सा हमारा जो है रेस्पिरेशन का रुक जाना, दैट इज कॉल्ड पॉज. So under these 3 steps, first of all, what is the detail about inspiration? Inspiration कैसे possible है, कैसे एयर हमारे लंग्स में एंटर करती है. तो inspiration possible है with the help of contraction of intercostal muscles and with the help of contraction of diaphragmatic muscles. When these both muscles contract, they will pull the thoracic cavity. These intercostal muscles pull the thoracic cavity upward and forward, and these diaphragmatic muscles pull the thoracic cavity downward. तो जितनी भी हमारी 3-4 मूवमेंट होगी मसल्स की कंट्रैक्शन की वजह से, सभी ने क्या कर दिया, अपवर्ड, डाउनवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट करके हमारे लंग्स के बीच में स्पेस को बढ़ा दिया. दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ लंग्स, कि लंग्स हमारे एक्सपैंड हो गए, उनका डायामीटर जो है बढ़ गया, उनका साइज जो है बढ़ गया. जब हमारा लंग्स का साइज बढ़ जाता है, there is decrease air pressure inside the lungs. obviously जब किसी चीज़ का साइज बढ़ जाता है तो अंदर उस चीज़ के अंदर जो है एयर का प्रेशर कम हो जाता है. there will be decrease air pressure inside the lungs. तो अंदर एयर का प्रेशर कम हो गया, जिसकी वजह से एयर मूव करेगी फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. इसके बाहर जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है हमारा, और जो अंदर है वो है हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट. जब इंटरनल एनवायरनमेंट में एयर का प्रेशर कम हो गया एक्सपेंशन की वजह से, तो एयर मूव करेगी फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट टू इनर एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन. व्हेन देयर इज इंक्रीज
the space, then there will be decrease air pressure inside the lungs and air will move from higher pressure to lower pressure, from external environment to internal environment. ऐसे जो एयर हमारी नेचुरली मूव करती है प्रेशर, एयर के प्रेशर ग्रेडियंट की डिफरेंस की वजह से एयर हमारी बाहर से अंदर की तरफ एंटर हो जाएगी, बिकॉज अंदर स्पेस बढ़ गई और एयर का प्रेशर कम हो गया. सो दिस हैपन्स इन द इंस्पिरेशन. देन व्हाट इज एक्सपीरेशन? एक्सपीरेशन मीन्स जब ये इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्रैग्मेटिक मसल्स दोनों रिलैक्स हो जाएंगे, दोनों रिलैक्स हो गए तो वापस जो लंग्स हैं अपनी वापस पहले वाली पोजीशन में आ गए. मतलब एक्सपेंशन के बाद वो उनका साइज जो है दोबारा नॉर्मल पोजीशन में आ गया. साइज जो है लंग्स का छोटा हो गया. एज कंपेयर टू प्रीवियस स्टेज देयर इज डिक्रीज इन द साइज ऑफ द लंग्स. और जब लंग्स का साइज छोटा हो गया, जब पहले फॉरवर्ड हुआ था वो बैकवर्ड आ गया, जो पहले अपवर्ड हुआ था वो डाउनवर्ड आ गया, और हमारे नीचे से भी डायफ्राम के मसल भी रिलैक्स हो गए, उसने भी थोड़ी सी अपवर्ड मूवमेंट कर दी. तो होल सम ऑफ द होल देयर विल बी डिक्रीज इन द साइज ऑफ लंग्स. जब लंग्स का साइज डिक्रीज हो जाएगा तो अंदर एयर का प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. इंक्रीज एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स. अभी प्रेशर इनसाइड बढ़ गया. जब बढ़ गया एयर प्रेशर, जैसे हम किसी बैलून को कंप्रेस कर दें तो बैलून से एयर जो है आउट हो जाएगी. ऐसे ही हमारे लंग्स अब कंप्रेस हो गए तो लंग्स में जितनी भी एयर जो है जिसका प्रेशर बढ़ गया तो नेचुरली लंग्स से जो एयर है वो बाहर की तरफ मूव करेगी. दैट इज कॉल्ड एक्सपीरेशन. दिस इज इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर, this is outward movement of air. Both processes takes place naturally because of movement of these two muscles, intercostal muscles and diaphragmatic muscles. Then next one is pause. Pause is the stoppage of respiration for very few seconds before the beginning of next inspiration. So this is the main thing, means this is the main मतलब क्या है इसे हम बोल सकते हैं मेन मैकेनिज्म ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन. सो क्लियर अबाउट दिस. नेक्स्ट इज द इंटरनल रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन. एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन की थी उसकी डिटेल थोड़ी सी. देयर आर टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, external respiration and internal respiration. Both are possible with the help of diffusion of gases, and diffusion of gases always takes place from higher concentration to lower कॉन्सेंट्रेशन. जो गैसेस की डिफ्यूज़न है वो हमेशा होती है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. गैसेस जो है मूव करती है. दिस मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूज़न. डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस. So diffusion of gases takes place in both type of respiration, in the external respiration and also in the internal respiration. External respiration which occur in the lungs, ये lungs में होती है external respiration, और internal respiration कहाँ पे होती है हमारे body cells में. तो गैस एक्सचेंज जो है हमारी बॉडी में एक तो थ्रेसिस रीजन पे होता है जिसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं, और आफ्टर प्यूरिफिकेशन ब्लड जो है हमारे सेल टिश्यू के पास पहुंचता है, जो वहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन. और दोनों ही जगह पे जो है गैस एक्सचेंज होता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूज़न प्रोसेस. डिफ्यूज़न में हमेशा गैसेस जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मूव करती है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द थ्रेसिस कैविटी.
यहाँ पे हमने बोला कि हमारा जो हार्ट है, हार्ट के राइट साइड से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डिवाइड एंड रीडिवाइड होके कहाँ पे पहुँचता है, हमारे लंग्स में पहुँचता है प्यूरिफाई होने के लिए। तो लंग्स से जो पल्मोनरी आर्टरीज आई, तो जब तक ये एल्वोलाई तक पहुँचेगी, सपोज कर लो ये एक एल्वोलाई है और ये उसके अराउंड है हमारी ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल जो है इधर आई, जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और ऑक्सीजन जिसके पास कम है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हमारे हार्ट से हमारे लंग्स में आ गया। वो लंग्स के पास आते आते जब तक वो एल्वोलाई तक पहुंचता है, तब तक ये डिवाइड एंड रीडिवाइड होके ब्लड वेसल ने क्या बना लिया, कैपिलरी बना ली, है ना। और ये हमारी हो गई एल्वोलाई। दोनों की मेम्ब्रेन जो है, दोनों की ये मेम्ब्रेन जो है थिन मेम्ब्रेन है। अभी हमारे ब्लड में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, और हमारे इंस्पिरेशन हमने की और हमारे लंग्स में क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे होगा गैस एक्सचेंज का प्रोसेस। जो ऑक्सीजन लंग्स में ज़्यादा है वो मूव करेगी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, वो हमारी कैपिलरीज में आ जाएगी, और जो कार्बन इधर ज़्यादा थी वो हमारी एल्वोलाई में चली जाएगी। ये होता है डिफ्यूज़न का प्रोसेस। तो इधर वाला थोड़ा सा ब्लूइश कलर का ब्लड जो है दिखाई देता है जब उसमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होती है, जब मतलब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो बाद में यही ब्लड का कलर चेंज हो गया, क्योंकि इधर अभी ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, गैस एक्सचेंज हो गया। अभी ये ब्लड जो है ब्राइट कलर का, रेड कलर का दिखाई देगा। तो कैपिलरी वही है, जब तक उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी उसका कलर थोड़ा डिफरेंट था, डार्क कलर का था, और जब गैस एक्सचेंज हो गया फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, अभी ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई, तो वही बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और उसका कलर जो है ब्राइट शाइनी रेड हो गया। दिस इज कॉल्ड exchange of gases by the process of diffusion. This takes place in the thoracic cavity also, and after purification blood enter through the pulmonary veins into the left atrium, then to the left ventricle, then oxygenated blood aorta के थ्रू सारी बॉडी में सप्लाई हो गया। तो बॉडी में सप्लाई होकर जो कैपिलरीज होगी उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, और बॉडी के जो सेल्स हैं, बॉडी के जो सेल्स हैं, सपोज कर लो ये एक बॉडी का सेल है, उसमें लगातार मेटाबॉलिज्म होती रहती है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी। तो वहाँ पे भी ऐसा सेम गैस एक्सचेंज का प्रोसेस होना है बॉडी में। जो थोरेसिक कैविटी में होता है दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, गैस एक्सचेंज, और जो हमारा बॉडी सेल्स में होता है दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। दोनों में होना है डिफ्यूज़न की तरफ से गैस एक्सचेंज, और जो यहाँ पे होता है उसे एक्सटर्नल बोल देते हैं रेस्पिरेशन। जो हमारे पूरे ऑर्गन्स में होता है, बॉडी के सेल टिश्यू में होता है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें आपने सबसे पहले लिखना है डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज़ पॉसिबल बाय टू प्रोसेसेस, ब्रीदिंग एंड दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। So after that you have to explain what are the muscles that are involved in the physiology of respiration, that are intercostal muscles and diaphragmatic muscles. When they contract they expand the lungs and when they relax they compress the lungs. तो जब एक्सपैंड हो गए तो एयर का प्रेशर अंदर कम हो जाएगा, इसलिए एयर हमारी बाहर से अंदर की तरफ लंग्स में मूव करेगी, दैट इज़ कॉल्ड इंस्पिरेशन। और जब ये मसल रिलैक्स हो जाएंगे तो लंग्स का साइज़ कम हो जाएगा और लंग्स में एयर का प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे बैलून को अगर हम कंप्रेस कर दें तो बैलून में जो एयर होती है उसमें प्रेशर बढ़ जाता है और वहाँ से एयर हमारी बाहर निकल जाती है बैलून से। सो दीज आर सेम प्रोसेसेस एज वी do in our general life. So next, what is external respiration and what is internal respiration. So this is the whole of the physiology of respiration. Thank you.